डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डिफेंस मैवरिक्स। तो आज हम लोग बात करेंगे अक्टूबर वीक 1 करंट अफेयर्स के बारे में। तो जंपिंग स्ट्रेट इनटू द टॉपिक, लेट्स बिगिन। डीआरडीओ एंड आईआईटी दिल्ली डेवलप अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स। ये अभेद क्या है? दे आर लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। और इसे डेवलप किसने किया है? डीआरडीओ अलॉन्ग विथ आईआईटी दिल्ली। तो दीज आर द important things that we have to keep in mind. Okay, what is the name? Abhed. What it is? Lightweight bulletproof jacket, and it has been developed by DRDO and IIT Delhi. That is the main thing. Okay, then these jackets have been created from polymers and indigenous boron carbide ceramic material. Okay, some extra information किसके लिए? Obviously हमारे armed forces, mainly army के लिए develop किया गया है, who are mainly the fighting with the insurgents and the terrorists in valley region on different places. Second, Surgeon Vice Admiral Aarti Saran becomes first woman to take over as the DG of the Armed Forces Medical Services. Okay, so she became the first woman officer to take as the Director General of the Armed Forces Medical Services team. ठीक है, Armed Forces की जो medical branch है उसमें she has become the first woman officer. So what's the name? That is important. Vice Admiral Aarti Saran. ओके, वाइस एडमिरल आरती सरन इनका नाम है। राइट, चलो नेक्स्ट, दैट्स ऑल। मतलब आई विल बी टेलिंग यू ओनली दोज एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम। अदर थिंग्स आर आल्सो गिवन हियर। ओके, सारथी 1.0। सारथी 1.0 क्या है? सारथी 1.0 इनिशिएटिव, it is addressed to address the needs of the most vulnerable sections of society through awareness generation, legal support and easing access to government welfare scheme. अब देखो, this is in partnership with NALSA. What is NALSA? NALSA is National Legal Services Authority. अब ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस नालसा? ओके, तो द प्राइमरी वर्क ऑफ नालसा इज कि हमें एक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए द प्रॉब्लम दैट पीपल वाज फेसिंग वाज मनी, एंड मनी वाज कमिंग इन द वे. लेट्स से देयर इज अ पुअर पर्सन who cannot afford the fees of a lawyer. So that means just because the person does not have money, he is not being served justice. Now, is that a good sign for the Indian constitution? Is that a good sign for democracy? Absolutely no. क्यों? क्योंकि then it becomes a government of the rich, it becomes a court of the rich. ये तो सिर्फ अमीरों के लिए हो गया. And that's why 42nd Constitutional Amendment Act के थ्रू, 42nd Constitutional Amendment Act जो कि सबसे important Constitutional Amendment Act है out of all, आर्टिकल 48A इंट्रोड्यूस किया गया था which talked about free legal aid. Okay, which talked about free legal aid, and उसी के basis पे नालसा was created to ensure that people, अगर उनके पास पैसे ना भी हो, even if they don't have the money, they can get a lawyer absolutely free of cost from the side of government. And this Sarthi initiative is based for that only. ठीक है? So the Department of Social Justice and Empowerment and the National Legal Services Authority, they signed a MOU, and this significant partnership is aimed at enhancing public awareness about various acts, rules, and schemes of the department, especially those designed to support the marginalized and vulnerable sections of the society. लोगों को ये पता ही नहीं होता है that उनको फ्री में लॉयर मिल सकता है from the government side, and this initiative is for the same. तो इस इनिशिएटिव से और क्या लिंक करेंगे? 42nd अमेंडमेंट का आर्टिकल 48 कैपिटल ए, which was free legal aid and which established NALSA. Okay, that is how we are going to connect the things. Okay, we do not read the news in isolation. That's the biggest mistake that we do, कि हम सिर्फ उस न्यूज़ को isolation में पढ़ते हैं. नहीं, we have to think and we have to see that what other things are also connected to it. Okay, next. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways launched the Cruise Bharat mission.
क्रूज भारत मिशन क्या है? What is a cruise? Cruise is mainly the riverine cruise. Okay, the government is focusing a lot on building the national waterways. जैसे यहाँ पे लिखा है ना, list of the 25 national waterways, actually not 25, I've given only 5 here. 25 याद करने की जरूरत नहीं है, the main ones you remember. For example, national waterway one is Ganga Bhagirathi Hooghly river system that passes through Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal. Okay, and then national waterway 2, that is Brahmaputra river. Questions could be asked because we are trying to reduce the dependency on roads and railways, because waterways use way less amount of fuel and money that is required for transportation, and that's why we are planning to develop and use our waterways as efficiently as possible. और उसी का एक है क्रूज भारत मिशन टुवर्ड्स दैट. Okay, so Cruise Bharat Mission, obviously, which under which ministry? It is under Ministry of Ports, Shipping and Waterways, and ये National Waterways याद रखना. Okay, these are the important ones. Next, okay, Deccan Chronicle के article है Indigenous cows get राज्य माता status in Maharashtra. So कहते सर ये क्या news हुई? How is that important for exam? It is very important. How? You have to understand that indigenous cows suddenly got into the news. Okay, and this is how UPSC picks question. They will not ask you question out of the blue. Okay, आपको लगेगा कि ये तो बायो का क्वेश्चन आ गया, अरे काउ के ऊपर पूछ लिया तो. No, just because it was there in news, the probability of this question coming increases. ठीक है, तो क्या काम की चीज़ें हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू सी दैट विच आर द स्पीशीज विच गॉट. ठीक है, तो देवनी, लाल कांधारी, खिल्लर, डांगी और गावलाव, ये स्पीशीज ऑफ काउस जो है इन्हें दिया गया है स्टेटस. नाउ यू नो व्हाट क्वेश्चन विल यूपीएससी आस्क और व्हाट क्वेश्चन विल सीडीएस और एनडीए आस्क, दैट लाल कांधारी, खिल्लर, डांगी, गोलाव आर स्पीशीज ऑफ व्हाट? डियर्स, काउस, डॉग्स, समथिंग लाइक दैट दे आर गोइंग टू आस्क. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. देन यहाँ से और व्हाट वी कैन सी, काउस जो इंडिया में पाई जाती हैं, दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. The one is called as Bos Taurus, and the pure Indian breed is called as Bos Indicus. ठीक है, तो जो प्योर इंडियन जो देसी काउज होती है उनका कुछ साइंस होते हैं. फॉर एग्जांपल देयर देयर लाइक ears are down like this, whereas these cows, the Videshi cows, their ears are up like this. Okay, then these cows have a hump. Okay, whereas these have a flat back. All right, whereas these have a flat back. All right, so these are the indication, but yes, these cows have a higher milk yield, and that's why in cows ka numbers are more and farmers are adopting these cows more, but they produce a kind of milk which is called as A1, which is not that good for health, whereas these cows produce a milk which is called as A2 quality milk, which is very good for health and all the benefits. जिस भी benefits की हम बात करते हैं, that देसी गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, that is the A2 milk. लोगों को जो लैक्टोस इंटॉलरेंस होता है वो A1 मिल्क के कारण होता है. ओके, लैक्टोस इंटॉलरेंस दैट इज ड्यू टू A1 मिल्क, नॉट A2 मिल्क. ओके, तो वो डिफरेंस होता है. बट यस, बिकॉज इन काउस का milk producing capacity is less, and because of the commercialization of the milk business, ये cows उतनी ज़्यादा farmers नहीं रखते. ओके, और इसीलिए बट इनका दूध, क्योंकि इनका मिल्क इज मोर न्यूट्रिशियस टू हेल्थ, तो दैट्स वाई द गवर्नमेंट्स आर प्लानिंग टू सेव देम, as well as इनका population is reducing because less and less farmers are adopting these. That's why also इनका population is reducing, so that's why they need to be saved. Okay, तो बस what we have to remember, ये species के नाम, what is the biological name of the cows, Indian cow Bos indicus, foreign cows Bos taurus. Okay, chalo next. Launch of Bharat Gen, the first government supported multimodal large language model initiative. ठीक है, दिस कम्स अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन. ओके, नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर भारत जन आता है. इट इज क्या? इट इज अ इनिशिएटिव एंड इन अ जनरेटिव एआई के थ्रू. ओके, दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द एआई
विथ अ इंडियन बेस। एआई एक ऐसी चीज है जो कि बहुत पावरफुल है, एंड वी डोंट वांट कि this thing which should be controlled by the outside world, outside of India, and that's why we are trying to bring everything to India. Okay, तो उसी के लिए हमने भारत जेन को लॉन्च किया है। राइट, ओके, तो दिस न्यूज भारत जेन, okay, under national quantum mission to scale up research and development and leverage into a leading nation in the area of AI. okay, research and development and इसको boost करने के लिए सर्विस को AI। yes, important, India Kazakhstan joint military exercise Kazand 2024 commences in Oli। ओली कहाँ है? ओली इज इन उत्तराखंड। ठीक है, तो कैजेंट वेरी एविडेंट बाय द नेम, कैजेंट इज कजाकिस्तान इंडिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कैजेंट। ओके, एंड दिस हैज बीन आस्क्ड 1-2 टाइम्स दैट इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो कैजेंट। ओके, लद्दाख इज डिमांडिंग स्पेशल स्टेटस अंडर द 6th शेड्यूल। अगेन दिस इज देयर इन अ लॉट ऑफ न्यूज। आपने अगर देखा होगा तो मैन नेम्ड सोनम वांगचुक, राइट, सोनम वांगचुक, जिनके लाइफ से इंस्पायर होके 3 इडियट्स जैसी फिल्में भी बनी हैं। ओके, तो ही इज लीडिंग दीज प्रोटेस्ट एंड ही वांट्स लद्दाख टू कम अंडर 6th शेड्यूल। अब अगेन यहाँ से व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन ड्रॉ फॉर आवर्स थिंग। हमने पॉलिटी में पढ़ा है द शेड्यूल्स, और उसमें हमने देखा है कि ये जो 5th और 6th शेड्यूल है, दे टॉक अबाउट शेड्यूल्ड एरियाज। 5th schedule talks about all the scheduled areas except some states, और वो एक्सेप्शन स्टेट्स जो कि हैं असम, ओके, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, ये 4 मेंशनड हैं 6th शेड्यूल में, बिकॉज दे हैव गिवन इवन अदर स्पेशल शेड्यूल स्टेटस। रेस्ट एवरी शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ इंडिया, भारत में और कहीं भी शेड्यूल्ड एरियाज हों, दे आर मेंशन इन 5th शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, इन यहाँ पे जो भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ऑल आर मेंशन इन 5th शेड्यूल, बट सिर्फ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनके शेड्यूल्ड एरियाज 6th शेड्यूल में मेंशन, एंड ऑब्वियसली दे हैव अ स्पेशल शेड्यूल स्टेटस। बट लद्दाख, डिस्पाइट बीइंग मोर देन 90% ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है, उनके पास एक शेड्यूल स्टेटस नहीं है, क्योंकि लद्दाख एज अ सेपरेट स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था 2019 तक। 2019 में लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, ओके, जम्मू कश्मीर से अलग। तो अब वो मांग कर रहे हैं कि हमें 6th शेड्यूल में, यानी स्पेशल शेड्यूल स्टेटस दिया जाए हमारे ट्राइबल लोगों को। ओके, दैट्स द थिंग। तो ऑब्वियसली 6th शेड्यूल इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो हमारे जितने भी शेड्यूल्स हैं, दैट इज शेड्यूल्स 1 to शेड्यूल 12, वो इंपॉर्टेंट हो गए। ओके, देन आर्टिकल 242 जो है वो 6th शेड्यूल एरियाज के बारे में बात करता है, विच इज असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। आपको कंफ्यूज कैसे करेगा एग्जाम सीडीएस? दे विल आस्क दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ 6th शेड्यूल, और ये मिजोरम की जगह मणिपुर कर देगा। ओके, so they are going to ask questions like this। शेड्यूल एरिया में आने का फायदा क्या है? Obviously you will be given some special protection। Then who has the power to accord a schedule status to a tribe या area? किसी भी एरिया या ट्राइब को शेड्यूल स्टेटस देने का पावर किसके पास होता है? ये पावर होता है हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास। Okay, this power lies with the president, not the parliament, not the supreme court, not the governor। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि हम शेड्यूल्ड एरिया का स्टेटस दें, ईदर टू अ ट्राइब और टू अ एरिया। ये सेम फाइट मणिपुर में चल रहा है। ओके, मणिपुर में दैट Meiteis, they are asking for a tribal status। Meiteis are asking for a tribal status, and who are they asking? अगर वो अप्रूव हुआ तो फाइनल ठप्पा किसका लगना है? प्रेसिडेंट का। When the president approves कि ओके Meiteis can be done, तो ही उन्हें मिलेगा। तो द फाइनल अथॉरिटी इज द प्रेसिडेंट। ओके, सो इतनी सारी चीज़ हम कनेक्ट करेंगे। और देन ऑब्वियसली लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, जो कि 2019 में बना था अलॉन्ग विद जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शंस भी हो रहे हैं, which again will be a new topic we'll discuss in the next class। ठीक है, कि कैसे एक यूनियन टेरिटरी का इलेक्शन डिफरेंट होता है फ्रॉम अ स्टेट इलेक्शन। ओके,
नेक्स्ट, क्लॉडिया शेनम्बम इलेक्टेड मेक्सिकोज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ओके, नेम इंपॉर्टेंट है क्या? क्लॉडिया शेनम्बम कहाँ की? मेक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ओके, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनम्बम, याद रखना। ओके, विल रिपीट दैट। देन नागालैंड वेल्स टू बी ऑफिशियल पार्टनर ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब ये हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नागा का मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके, एंड इससे ऑब्वियसली अगेन व्हाट कैन वी सी, फेस्टिवल नेम्स एंड द स्टेट। ये जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरियाज ऑफ यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है जोग्राफिकली, पॉलिटिकली, ओके, कल्चरली, दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस एरिया, बिकॉज ऑब्वियसली ये हमेशा न्यूज़ में भी रहता है। ओके, तो यहाँ पे एक लिस्ट दे रखा है, मेक श्योर दैट यू सी दिस इन द पीडीएफ, बट अभी के लिए क्या याद रखना है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड। वेल्स, ये कंट्री कहाँ है? दिस इज लोकेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम नियर इंग्लैंड। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम बट इंग्लैंड से अलग है। ऑलराइट, अर्लियर इट यूज्ड टू बी अ पार्ट, बट अभी अलग हो गया है वेल्स। ओके, next, some sports news. India vanquished Bangladesh to wear the SAF under 17 crown again. ठीक है, what is SAF? South Asian Football Federation, SAF। तो SAF अंडर 17 के चैंपियंस कौन है? इंडिया। और किसे हराया? बांग्लादेश को। ओके, देन इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप। कौन सा वर्ल्ड कप? खो खो एक गेम होता है जो कि इंडिया में ओरिजिनेट किया है, जस्ट लाइक कबड्डी। ठीक है, खो खो इज अ इंडियन ओरिजिन गेम एंड इंडिया फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है, एंड खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज मेड द अनाउंसमेंट। खो खो के बारे में कुछ और जान लेते हैं। एक टाइम पे इट इज हैविंग 9 प्लेयर्स ऑन ग्राउंड। ठीक है, एक्चुअल 12 प्लेयर्स ले जा सकते हैं, जस्ट लाइक क्रिकेट में 15 और 16 प्लेयर्स ले जा सकते हैं, बट आउट ऑफ देम ओनली 11 प्ले। लाइक दैट खो खो में ओनली 9 प्लेयर्स प्ले एट अ टाइम एंड टोटल टीम इज ऑफ 12। ओके, नेक्स्ट, launch of 25T Bollard Pull Tug Ashwa. Now, what is Ashwa? It is Bollard Pull Tug. Okay, Bollard Pull Tug, and it has been developed by TRSL Kolkata. What is TRSL? It is Titagar Rail Systems Limited, Kolkata. Okay, तो पुल टग क्या होता है? दिस इज मेनली कभी शिप्स फंस जाए और ऐसा कुछ हो जाए तो टेक आउट देम फ्रॉम दैट प्लेस, दीज थिंग्स आर देयर। ओके, the pull tug and it is mainly for the Indian Coast Guard, right? Pull tugs etc. ये कोस्ट गार्ड ज़्यादा ऑपरेट करती है, right? तो it is again in consonance with the आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट, TRSL, याद रखिएगा। अब अपार्ट फ्रॉम दैम जो इंडियन नेवी के लिए शिप्स बनाते हैं मेनली वो क्या है? वो आप देखिएगा MDL, मजागांव डॉक्स लिमिटेड। ओके, GRSL कोलकाता। ठीक है, देन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ये सारे बनाते हैं। मजागांव डॉक्स, GRSL, कोचिन, गोवा, ये इंडियन नेवी के लिए शिप्स बनाते हैं एंड सबमरीन्स। देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल अप्रूव्स 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस। नाउ व्हाट इज अ क्लासिकल लैंग्वेज? क्लासिकल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है दैट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अराउंड 1000 और 1500 ईयर्स। इट हैज़ गुड अमाउंट ऑफ लिटरेचर प्रेजेंट इन इट। इसमें अच्छा खासा लिटरेचर होता है एंड इट हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द कल्चर ऑफ पीपल। ठीक है, कल्चर से रिलेटेड ये लैंग्वेज है, उन्हें क्लासिकल लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो इसके पहले देर वर तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, Malayalam and Odia. These 6 were the classical languages, but now cabinet has approved that 5 more to be included. और वो 5 नए कौन कौन से हैं? They are Marathi, Assamese, Pali, Prakrit and Bengali. Okay, पाली, प्राकृत एंड बंगाली। मराठी ऑब्वियसली महाराष्ट्र में, असमीज कहाँ? असम में। पाली और प्राकृत इन द मेनली इन द हिंदी बेल्ट, यूपी, बिहार, ओके, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये। एंड प्राकृत बीइंग द ओल्डेस्ट, बहुत सारे लाइक बुद्धिस्ट, जैन, अशोकन, इस टाइम के जो इंस्क्रिप्शन है दे आर रिटन एक्चुअली इन प्राकृत। ओके, नॉट संस्कृत, दे आर इन प्राकृत। ठीक है,
तो इन्हें नया दिया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मराठी, असमीज, पाली, प्राकृत एंड बंगाली को इंक्लूड किया गया है इन द क्लासिकल लैंग्वेजेस लिस्ट। ओके, और उनके क्राइटेरिया याद रखना, 1000 to 1500 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए, उनके पास एक सिग्निफिकेंट लिटरेचर होना चाहिए, और कल्चर पे एक गुड इम्पैक्ट रहना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट न्यूज़। ओके, एएनआई की न्यूज़ है दैट चेन्नई में 92nd एयरफोर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो वी जस्ट हैव टू रिमेंबर कहाँ हो रहा है, चेन्नई में एयरफोर्स डे सेलिब्रेशंस। ओके, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। ओके, एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। देन एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द एयरफोर्स। द न्यू चीफ ऑफ एयरफोर्स इज एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, राइट। फिर कुछ टाइम पहले नेवल चीफ और न्यू आर्मी चीफ भी डिक्लेयर किए गए थे। जैसे न्यू नेवल चीफ हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ओके, द न्यू नेवल चीफ इज एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एंड द न्यू आर्मी चीफ ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ओके, तो जस्ट रिमेंबर द नेम्स। ओके, क्योंकि अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स ही है ये, राइट, ज़्यादा पुराने नहीं है। तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एंड जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ओके, नेक्स्ट देयर इज अ नेशनल वर्कशॉप जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन करा रहा है, एंड दैट इज द कॉल्ड एज द पीपल्स प्लान कैंपेन, ऑल्सो कॉल्ड एज सबकी योजना सबका विकास अभियान। ओके, तो व्हाट इज दिस सबकी योजना सबका विकास अभियान अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज? इट इज पार्टनरिंग विद several organizations to advance and intensify action on special ग्राम सभास, पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स एंड मेक सबकी योजना सबका विकास। तो बेसिकली पंचायत को अपलिफ्ट करने के लिए एनजीओज एंड अदर ग्रुप्स से जो हम तालमेल बैठा रहे हैं एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, दिस इज द नेशनल वर्कशॉप फॉर दैट पीपल्स प्लान कैंपेन। हमने जब 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू लोकल गवर्नमेंट लाया था, राइट, लोकल गवर्नमेंट एंड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सो व्हाट वाज द एम? द एम वाज कि हम एक ग्रास रूट डेवलपमेंट करें। ओके, ग्रास रूट डेवलपमेंट, एंड दिस इज अ गांधीयन प्रिंसिपल विच सेज कि डेवलपमेंट तब तक नहीं मानी जा सकती, इट इज नॉट अ प्रॉपर डेवलपमेंट जब तक इट इज हिटिंग द ग्रास रूट्स, जब तक इट इज हिटिंग द लास्ट पर्सन, तब तक उसे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। एंड इफ यू वांट टू डेवलप इंडिया यू मस्ट स्टार्ट विद डेवलपिंग द विलेजेस। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हम इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को यूज करते हैं, एंड देयर इफेक्टिव वर्किंग इंश्योर्स कि द विलेजेस डेवलप। एंड ऑब्वियसली द मोस्ट अनडेवलप्ड पार्ट ऑफ इंडियाज विलेजेस ही होते हैं, तो उन्हें डेवलप करना ही मेन काम है सरकार का। ओके, द पीपल्स प्लान कैंपेन और सबका विकास सबकी विकास सबका योजना इज द इनिशिएटिव। ओके, then scientists found a massive underground ocean hidden 700 kilometer below earth's surface। work economics time का एक headline है, and this is a relatively old news but again it is coming back। अब यहाँ से क्या है, 700 किलोमीटर बिलो, दैट मीन्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, इट इज नियर समवेयर नियर मैग्मा, इट इज समवेयर नियर मैग्मा के पास से मिला है। तो ऑब्वियसली इट इज नॉट फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, इंस्टेड ऑफ लिक्विड वाटर this is a water trapped in a crystalline structure of a blue mineral called ringwoodite। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, से पूछ देगा ringwoodite क्या है। सिंपल, what is ringwoodite? that was recently in news। okay, so it is a blue mineral that traps water in a crystalline structure। ठीक है, and how scientists have found it? they have found it using the seismic data। तो obviously we cannot dig that inside the earth, अर्थ के उतने अंदर नहीं जा सकते, तो हम सीस्मिक वेव्स अगर आपको याद हो, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, जो ज्योग्राफी में पढ़ रखा है। ओके, कि प्राइमरी वेव हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, सेकेंडरी वेव हमारी ट्रांसवर्स होती हैं, दिस इज फास्टर दिस इज स्लोअर। ठीक है, शैडो एरिया प्राइमरी वेव का कम होता है, सेकेंडरी वेव का ज़्यादा होता है, राइट। ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू रिलेट। ओके, all these things we have to relate। okay, चलो नेक्स्ट। अब ये मैप क्यों लगा रखा है सर आपने? ये मैप इसलिए लगा रखा है क्योंकि इस कंट्री
ईरान ने अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं एयर स्ट्राइक्स ऑन इसराइल। ओके, अब हमें क्या उससे, हमें क्या, हमें ये कि इससे ये पूरी की पूरी जोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एफकैट वालों के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल टू सी द बॉर्डर्स, कि ईरान किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है, इसराइल किससे करता है। द सेम क्वेश्चन वाज देयर इन सी डी एस, आई थिंक सी डी एस 1 2024, दे आस्क्ड अबाउट जॉर्डन। ओके, एक्चुअली दे आस्क्ड अबाउट दैट विच ऑफ द कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, और ऐसे तीन चार दे दिए थे, राइट। तो ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इस बार भी सी डी एस 2024 में दे आस्क्ड अबाउट यूक्रेन, कि यूक्रेन और रशिया से कनेक्ट करता हुआ कौन सा कंट्री नहीं है, विच ऑफ द कंट्री डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ बोथ। ओके, तो दैट्स वाई जो भी एरियाज इज देयर इन कॉन्फ्लिक्ट, उसके जोग्राफी एंड उसका मैप शुड बी देयर इन योर हेड। ओके, तो जैसे ईरान को अगर देखें तो हियर वी हैव पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्की, इराक। ओके, दैट शेयर बॉर्डर विथ ईरान। और अगर इसराइल की बात हो तो इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनन एंड सीरिया, ये चार इसराइल से बॉर्डर शेयर करते हैं। ईरान जो है वो आपका बॉर्डर लाइक सी वाटर्स कौन से हैं, तो दिस इज द कैस्पियन सी हियर। ओके, देन वी हैव गल्फ ऑफ ओमान हियर, इस वाले को हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ। ओके, ये जो एक छोटा सा वाटर बॉडी है ये कहलाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ओके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ओके, तो ये सारे वाटर बॉडीज हैं जो ईरान शेयर करता है। इसराइल किससे करता है, हियर मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे एक छोटा सा है जिसे हम कहते हैं डेड सी। ओके, देन सी ऑफ गैलीली एंड सी ऑफ अकाबा। ओके, सी ऑफ गैलीली एंड सी ऑफ अकाबा। So this is how we are going to see the things. Okay, this is how we're going to see the things and this is how we are going to relate the things and understand कि यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ कैसे रहा है, सीडीएस आपसे क्वेश्चंस पूछ कैसे रहा है। They are not asking things out of the blue. Okay, current affairs is the most important thing. आप पॉलिटी ले लो, जोग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, इवन साइंस ले लो, इनके भी जो क्वेश्चंस हैं दे आर कमिंग समहाउ रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। वॉट एवर इज इन करंट अफेयर्स वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एंड उससे रिलेटेड चीज़ें पॉलिटी, जोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस से पूछी जाती हैं। ओके, दिस इज द पैटर्न ऑफ यूपीएससी फॉलोज, दे आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द ब्लू। ओके, तो चलो फ्रेंड्स, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रॉम October 1st week current affairs. We'll meet next week. Till then, good night and Jai Hind.